Hello students, very welcome to all of you. So today in complex number, we are going to move ahead and we are going to do the last part of this topic. That is nothing but we have to find out the equation in the Cartesian coordinates of the locus of z. Now, what exactly is locus? ये locus होता क्या है? Now students, you are going to learn this ahead, definition of locus. But since we required ये locus word use किया है उसने, so let me explain you the definition of a locus. So write down type 12. Write down definition of a locus. क्या है definition of a locus? The set of all the points satisfying some geometrical condition is called as a locus. ठीक है? So the set of points जो satisfy करता है किसी geometrical condition को, that is called as nothing but a locus. This you will be learning in detail when you will be doing the topic locus and straight line. जब आप करोगे ना, उसमें ये आप डिटेल में पढ़ने वाले हो. Now we have to use this over here while problem solving, and also we have to use the definition of modulus. जो mod हमने फाइंड करना सीखा है, उसका डेफिनेशन यूज करके हमें ये क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड करना है. तो यू जस्ट रिमेंबर, फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. मतलब आपको एक इक्वेशन फाइंड करना है विच विल बी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, और उस इक्वेशन को उसने नाम दिया है लोकस, लोकस ऑफ जेड. मतलब उसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है. तो लेट अस फर्स्ट सी डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस. थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एंड देन विल we start solving the exercise 1.4 का question number 6 start करेंगे. Okay, चलो. So write down in this, we know that ऐसा लिखो, if x plus iota y is a complex number z, if x plus iota y is a complex number equal to z, therefore students, mod z is given by what? So mod z is nothing but equal to under root of x square plus y square होता है. हो सकता है आपने इसको a plus iota b के फॉर्म में याद रखा होगा, ऐसा भी आप लिख सकते हो. if a plus iota b is equal to z, therefore modulus of z is nothing but equal to under root of a square plus b square. इसमें से आपने कुछ एक किया होगा. a और b के फॉर्म में भी चलता है और x और y के फॉर्म में भी चलता है. बट सिंस वी विल बी डूइंग द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इक्वेशन कौन सा फाइंड करना है? इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मींस वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y. सो ऑब्वियसली वी विल बी यूजिंग दिस x प्लस आयोटा वाला फॉर्म. तो जहां पे भी z होगा, z विल बी रिप्लेस्ड बाय x प्लस आयोटा y एंड वी हैव टू यूज द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस. चलिए ये दोनों आप लिख लीजिए. इनफैक्ट ये जो सेकेंड वाला है उसको मैं रब कर देता हूँ, बिकॉज सेकेंड वाला हमें यूज नहीं करना है. वी विल बी यूजिंग द फर्स्ट फॉर्म ओनली. ये तो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैंने लिखा था. नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6. तो राइट डाउन सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 6. नाउ इफ यू ऑब्जर्व स्टूडेंट्स, सभी क्वेश्चन में z है, तो व्हाट विल वी टेक? Let z be equal to x plus iota y. Write down solution. Let z be equal to x plus iota y. ये सबके लिए है, जितने भी सब पार्ट्स आपको दिख रहे हैं ना बोर्ड पे. This z is for all of them. Now let us do the first part of the example. क्या दिया है? Mod z is equal to 10. This is given. Now we want to find out equation in the Cartesian coordinates, means in terms of x and y. तो इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है. So write down, therefore modulus of z is equal to what? Under root of x square plus y square. This is equal to 10. ये देखो mod का डेफिनेशन. Mod z is equal to under root of x square plus y square. Now we want equation, तो क्या करेंगे? Squaring on both the sides. चाहिए तो लिख लो आप, squaring on both sides
So what do we get the equation? X square plus y square is equal to 100. That's it. Problem is over. Is the, ऐसा लिखो, is the required equation of locus. Okay, this is the required equation of locus. Problem is over. Now, students, you will be learning ahead. Let me tell you थोड़ा सा और मैं detail आपको बता देता हूँ. Now, x square plus y square equal to 100. This equation that we have obtained, this is nothing but equation of a circle. Now we will be learning under conic section. Circle topic ये आपने 10th standard में भी किया है, but we will be learning this circle, parabola, ellipse, hyperbola, straight line. ठीक है, ये सब equations है and they are called as equation of locus. Now why this is called as equation of locus, x square plus y square equal to 100, जरा थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी के फिर एग्जांपल्स हम बाद में सॉल्व करेंगे आफ्टर दिस एग्जांपल. नाउ व्हाट डज द डेफिनेशन सेज? लोकस क्या बोलता है? अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स satisfying some geometrical condition is called as a locus and this is called as an equation of a locus. अब ये सर्कल जो है वो लोकस कैसे बन गया? तो जस्ट पे अटेंशन. नाउ इफ यू ऑब्जर्व, ये सर्कल है. नाउ we know that the center, this is the center of the circle. Now from the center to every point on the circle, ये जो radius है ये same रहने वाला है. तो चलो, if I name this as radius CA, CA is the radius of the circle, it will remain same. आप कोई दूसरा radius ले लो, CB, ये भी radius same रहेगा. तो मतलब पॉइंट ए का डिस्टेंस सेंटर से सेम है, पॉइंट बी का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज सेम. यू टेक एन नंबर ऑफ पॉइंट्स, कितने भी पॉइंट्स आप ले लो, सबका डिस्टेंस सेंटर से सेम रहने वाला है. तो यहाँ पे ऐसे जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे ए बी सी डी ई, तो दे आर ऑल कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. ऑल दीज पॉइंट्स आर एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ना. तो एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. क्या ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? कि हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से सेम है. दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज एन लोकस. सी द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स satisfying some geometrical condition is called as an locus, and since we are getting the equation in terms of x and y, this is called as equation of the locus. And this is nothing but equation of a circle. Now this you will be learning in detail under the topic locus and straight line, but this is very important part of the topic, JEE point of view. Make a note of this, then we'll move on to the remaining problems. So chalo, let us move on to the next example number 3. Now students, first के बाद मैं third example ले रहा हूँ. So जो examples that are pending, that you can do it as homework section very easily. So let's begin with the solution for the third example. क्या दिया है? Mod of z minus 5 plus 6 iota is equal to 5 given. Now z substitute करो. So therefore mod of z will be replaced by x plus iota y minus 5 plus 6 iota will remain same. This is equal to 5. Now what we'll be doing? Modulus find करना है. अब जब हम मॉड्यूलस फाइंड करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी इन फॉर्म ऑफ x plus iota y. So we have to write down real part together and imaginary part together. तो लिखिए therefore modulus of real part कौन सा है? x and minus 5. इसको एक ब्रैकेट में लिख लो. x and minus 5 written into the bracket. और जो इमेजिनरी वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, उसमें से आयोटा कॉमन आ जाएगा. तो प्लस वी विल गेट y plus 6 times of iota, close the modulus symbol, and this is equal to 5. Now if you compare this, ये देखो ये किस फॉर्म का है? x plus iota y. This is of the form, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. अब इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है. तो सी मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो रियल पार्ट का स्क्वायर, देखो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जो मॉड्यूलस ऑफ z है ना, इट इज अंडर रूट ऑफ
रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर. तो x इज द रियल पार्ट एंड y इज द इमेजिनरी पार्ट. उसका स्क्वायर है रूट के अंदर. दैट इज हाउ वी फाइंड द मॉड्यूलस. और रिमेंबर, तो लिखो देयरफॉर अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर. व्हाट इज रियल पार्ट? x minus 5 the whole square plus imaginary part का square, so that is nothing but y plus 6 the whole square and this is nothing but equal to 5. अभी हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स. तो स्क्वायरिंग करेंगे तो आप लिखो, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ स्पेस, मुझको इसी स्पेस में कंप्लीट करना है. तो आप लिखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा. तो व्हाट विल बी लेफ्ट आउट? x minus 5 the whole square plus y plus 6 the whole square is equal to 25. अभी इसको एक्सपांड करके हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो इसका एक्सपांशन क्या आएगा? x square minus 10x plus 25 plus y square plus 12y plus 36 is equal to 25. एक्सपांड किया इसको, a minus b the whole square, a plus b the whole square का फॉर्मूला यूज किया. अब क्या होगा? कैरी आउट द कैंसिलेशन, प्लस 25 और ये प्लस 25 गया. तो लेट्स रीअरेंज. x स्क्वायर माइनस 10x, पहले x वाले टर्म्स लिख दो, प्लस y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लोकस. हो गया, प्रॉब्लम इज ओवर. is the, ऐसा लिख दो, is the required equation of the locus. That's it, problem is over. See, we want to find out क्या? Find the equation in Cartesian coordinate, that is in terms of x and y हमें फाइंड करना होता है. वी हैव डन इन दीज टू एग्जांपल्स. तो प्रॉब्लम एकदम सिंपल है, सिर्फ मॉड का डेफिनेशन हमें अप्लाई करना है एंड वी विल गेट अवर कार्टेशियन इक्वेशन दैट इज इन टर्म्स ऑफ x and y. प्लीज मेक अ नोट, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टू एग्जांपल्स. So students, let us move on to the next example. Example number 5. क्वेश्चन 6 का फिफ्थ एग्जाम्पल. फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है? मॉड ऑफ z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस 2 आयोटा. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू रिप्लेस z स्टूडेंट्स. देयरफॉर क्या मिलेगा? मॉड ऑफ z विल बी रिप्लेस्ड बाय x प्लस आयोटा y. ये फर्स्ट स्टेप हो गया. नाउ सेम थिंग, रियल पार्ट टुगेदर एंड इमेजिनरी पार्ट टुगेदर इनसाइड द मॉड्यूलस. देयरफॉर मॉड ऑफ x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, और ये दोनों में से आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो प्लस y माइनस 2 इंटू आयोटा. क्लोज द मॉड्यूलस सिंबल. दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आएगा x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, और ये दोनों में से आयोटा कॉमन आएगा, तो इट विल बी y प्लस 2 इंटू आयोटा. क्लोज द मॉड्यूलस सिंबल. बस अभी मॉड्यूलस का डेफिनेशन अप्लाई करेंगे हम. तो इट्स वेरी सिंपल, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा. दिस विल बी इक्वल टू, सेम यहाँ पे भी वही चीज होगी, x प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 द होल स्क्वायर. सेम थिंग विल हैपन ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वालिटी. अभी इक्वेशन चाहिए तो रूट को एलिमिनेट करना है. तो रूट को एलिमिनेट करने के लिए हम स्क्वायरिंग करेंगे ऑन बोथ द साइड्स. तो व्हेन वी डू स्क्वायरिंग, दोनों तरफ से रूट एलिमिनेट हो जाएगा.
So what will be left out? लिखो x minus 2 the whole square plus y minus 2 the whole square is equal to, अब जल्दी से इसको एक्सपांड कर लो आप। तो इसका एक्सपांशन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू, इसका एक्सपांशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 एक्सपांड हो गया। नाउ कैरी आउट द कैंसलेशंस दैट आर पॉसिबल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वालिटी। ये देखो, ये एक्स स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, ये प्लस 4 इसके साथ गया, वाई स्क्वायर कैंसिल, प्लस 4 कैंसिल। व्हाट इज लेफ्ट आउट? सिर्फ एक्स और वाई वाला टर्म बच गया। व्हाट वी कैन डू? शिफ्ट इट ओवर हियर और शिफ्ट इट ओवर देयर आल्सो। ये 4x इधर, तो ये हो जाएगा माइनस 8x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। डिवाइड थ्रू आउट बाय -8, -8 से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा? x प्लस वाई इक्वल टू 0 इज द required equation of locus. That's it, problem is over. ठीक है? So we have divided by -8 and we have got the final answer. We have got the Cartesian equation in terms of x and y. So एकदम simple procedure. Okay, note down. Then we'll move on to the last problem. So students, सिक्स्थ एग्जाम्पल भी सेम है। इसको सिर्फ इतना करना है कि ये जो मॉडुलस वाला है ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको राइट हैंड साइड में लेके आएंगे। बट स्टिल ये अपॉन वाला था, तो आई एम डूइंग दिस एग्जाम्पल। ऐसा नहीं होना चाहिए अरे सर ने अपॉन वाला प्रॉब्लम नहीं किया। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड वी कैन डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डन दिस। ओके, चलो, तो लेट अस बिगिन विद दिस नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फॉर दिस कार्टेशियन इक्वेशन वाला फॉर्म एंड द लास्ट प्रॉब्लम फॉर दिस टॉपिक ऑल्सो। इसी के साथ फिर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, रेस्ट एवरीथिंग वी हैव कंप्लीटेड। JEE वाले जो स्टूडेंट्स हैं, फॉर देम दिस टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक। चलिए नेक्स्ट सिक्स्थ वन देखिए क्या दिया, मॉड ऑफ z प्लस 3 अयोटा, है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 6 अयोटा। ये क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ रिप्लेस z, स्टार्ट डूइंग। z will be replaced by x plus iota y plus 3 iota remaining same. Therefore modulus of x plus, इसमें से iota कॉमन ले लिया, y plus 3 into iota, और इधर से मिलेगा y minus 6 into iota. Now apply this definition mod का, therefore क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y प्लस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y माइनस 6 द होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दो तो x स्क्वायर प्लस y plus 3 the whole square is equal to x square plus y minus 6 the whole square आ जाएगा। एक्सपांड कर दो और सिंप्लीफाई, ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसका एक्सपांशन y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, इसका एक्सपांशन y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। Now carry out the cancellation and bring all the terms to one side and solve the problem. चलो do it। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, this 12y will be shifted to the left hand side, so 6y plus 12y is nothing but 18y
9 माइनस ये 36 यहाँ पे आ जाएगा, तो 9 माइनस 36 तो कितना होगा, चलो लिखो फटाफट। इट विल बी -25, this is equal to 0. So 18y minus 25 is equal to 0 is the required equation of the locus. Is the required equation of the locus. Okay, चलो write down. बराबर है, करेक्ट है कि कुछ गलत है यहाँ पे, सही है कि गलत है? चलो देखो and tell me is something wrong or everything is correct. Please check. Anyone? I hope you must have understood what is the correction in this. क्या करेक्शन है यहाँ पे? -25 नहीं आएगा, क्या आएगा? -27 आएगा, है ना? तो यू हैव टू डू इट केयरफुली व्हेन यू आर डूइंग। ऐसा नहीं कि सर लिख रहे तो हमने भी लिख दिया। कैलकुलेट करो। 18y minus 27 equal to 0 is the required equation of the locus. आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। You can divide throughout by 3 also, 9 also, 9 से भी डिवाइड कर सकते हो ना, दोनों डिविजिबल बाय 9 itself है। तो क्या हो जाएगा, अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो सिंप्लीफाई करके आंसर लिखो या डायरेक्ट लिखो तो भी चलेगा। ओके, यू कैन कीप इट इन दिस फॉर्म आल्सो, और एल्स इफ यू डिवाइड, व्हाट डू वी गेट? 9 से डिवाइड कर दोगे तो जगह 2y minus 3 equal to 0। अब हो सकता है टेक्स्ट बुक में ऐसा आंसर दिया रहेगा that 2y is equal to 3 या y is equal to 3/2। एवरीथिंग इज वेल एंड गुड। 18y minus 27 equal to 0 ऐसा रखो तो भी चलेगा, उसको सिंप्लीफाई करके लिखो तो भी चलेगा। वॉट एवर यू राइट डाउन इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लोकस। So with this, students, we have completed finding the equation in the Cartesian coordinates by using the definition of modulus. So with this, we have completed the topic complex number. Now next time we will continue with the next topic. Okay, so please keep studying and keep watching my YouTube channel. Thank you very much.